Aquarius. So Aquarius is a male sign, is a fixed sign, and it is ruled by Saturn. And it's a windy sign. Now, normally we have 12 houses, and like we said, Lagna covers all 12 houses in 24 hours. So each and every house we consider to be of 2 hours interval, right from sunrise to next day sunrise. But it is not actually 2 hours. There are some houses which are more than 2 hours. Means Lagna ascendant remains in one house for more than some houses like Taurus is maximum. It is 2.5 hours. Some are 2 hours, 10 minutes. Some are 2 hours, 15, 20 minutes. While some are less than 2 hours. So Aquarius is the shortest of all the Rashis. So you will find very few people who are having Aquarius. It's Lagna. Like comparatively, you will have a lot of people who are having Aries or Taurus, Gemini, but Aquarius Lagna usually you will find people, very few people. Even Rashi, Moon also travels very fast through Aquarius. It's 2.5 days. It travels in 2 days or less than 2 days, according to me. Aquarius. So Aquarius is not very common. You will not find a lot of people who are having Aquarius chart. You are Aquarius, no Rahul? Yes, I think so. You are Aquarius, and you have got Moon as in seventh house. Yes, sir. That is what you are told, right? Yes. Yes. So Aquarius. So what we consider here, ki your physique or your personality is related to Aquarius, but your mind it is more related to Leo. But then because it is in seventh house, so it could mean that your partner is more of a Leo type of person rather than you. Okay, sir. Huh. So, but you will have more of Saturnine qualities. Leo qualities, of course, would be there, but then there would be a conflict always between your personality as well as your character, as your emotions. Conflict in what sense? There is a conflict between Saturn and Sun. Sun always in your thing, in Yes. your chart. So your personality could be slow. It could be more fixed. Now both your moon sign is also fixed, so this will make you more fixed or more obstinate in nature. And both are male signs. Means your moon sign is also male sign, and your health sign is also male sign. So again, this means that your testosterone or male qualities would be more prominent in you. So this could signify that you could be more obstinate, it could be more fixed, it could be more uh, towards a dominating or towards a egoistic side. And there could be conflict between your partner and yourself. So this is one thing which you have to be careful. This once you make decisions, it would be easy for you to implement it. Okay. But the problem out here is, even it is a fixed wind, so wind cannot be controlled. Okay. You cannot trap a wind. So this makes Aquarius dangerous and land up in people of Aquarius, especially
have autoimmune. Nilesh, I have also Aquarius ascendant and Virgo moon. So Virgo moon chalo is better, but Virgo moon is 6th house moon. Okay. Sorry, 8th house moon you have. Hmm. So this again moon is not very comfortable in 8th house, but Virgo chalo comparatively it is okay. Because Mercury and Saturn are friends. But for him, this becomes opposites. Saturn and Sun are opposites to each other. So ideally, if you go in partnership, a Leo moon, जी sir. so it could create problems for you. It could create ego problems. It could create unhealthy relationships in general. So you have to be a little careful on that front. Okay. Sir, I have 4 planets in 10th house. 10th house. Yes. So 10th house means again it is Vrishik. 10th house is Vrishik or Scorpio. So this will again make you extremely industrious, extremely strong, career oriented, very firm in your opinions. So, so now here what it means that your Lagna is a fixed sign, your moon is a fixed sign, and your work environment where you have got 4 planets, again it becomes a fixed sign. Yes. So this means that you have got a very strong psychosyphilitic tendency or a strong psychotic tendency. Yes. So this, what this means, first of all, decisions you will take and you will not change it very easily, and you will prefer a routine type of work. Yes sir. हाँ, तो मतलब कोई भी एक ऐसे नहीं कि you can change your career very fast. I mean, there are people who may change their careers or who may like to do multitasking or like to do many things at one time. But you will be focused in your work usually. You will like to do only Once I decided, then I have to do. you have to do Yes. because it is Scorpio. Your 10th house is Scorpio, but this will make you colder. Means this the problem with you would be that you will consider more. You'll be more practical in nature rather than emotional. No, I'm sir, I'm emotionally dry. You'll be काफी लोग मुझे बोलते हैं ऐसा कि सर आप में इमोशंस नहीं है तो बोलता हूँ तो ये बहुत ड्राइनेस आएगा बिकॉज वृश्चिक again it's even though it is a watery sensitive sign, but the problem out there because moon is debilitated actually in Vrushik Rashi. So this will, and being a fixed sign, yes so the problem is no कोई तुमसे पंगा लेगा तो उसकी problem हो सकता है. If you cannot forgive and you cannot forget because all become fixed signs. yes वो एक बार मन में आ जाता है ना कि गलत करा तो फिर मैं बोलता नहीं उसको कभी इजीली. You cannot forgive, you cannot forget. So that is, so your disorders would be again very much fixed in natures. मतलब कोई भी बीमारी होगी तो जल्दी जाएगी नहीं तुम्हारी केस में, क्रॉनिसिटी काफी स्ट्रांग होगी एंड एक बीमारी वाइज आल्सो यू विल हैव टू बी केयरफुल इन द सेंस कि स्टैग्नेंसी डिसऑर्डर्स हो सकती है बिकॉज वृश्चिक आ गए, काफी प्लैनेट्स उधर आ गए और ये भी फिक्स्ड और मून भी फिक्स्ड. yes You have to be careful about your kidneys and blood pressure. yes BP regularly check karo, specifically diastolic BP may go very high in your case. yes Do you have family history of blood pressure? no sir. No, na? What No is your age now? sir, I'm 25. 25. No? Just take care of your BP and do kidney. सर आराम्यूर या नेट्रम्यूर हो सकता है क्या? Natramur नहीं हो सकता ये.
हाँ ये Sir, can I share once my chart? yes, share your chart. I will Okay. just WhatsApp पे शेयर करो, देखते हैं हम लोग। सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग दीपांशु। केस डिस्कस कर रहे हैं क्या सर? नहीं, इसका चार्ट है, वी आर डिस्कसिंग एक्वेरियस। ओके सर। हाँ तो एक्वेरियस में इसका राजेश ना, Rahul, sir. Rahul. राहुल see now in his case अभी शनि स्वराशि, शनि फर्स्ट हाउस में आ गया, एक्वेरियस फर्स्ट हाउस, and then in 10th house we have got Shukra, we have got Surya is 0 degree, okay, we have got Mercury, we have got Mangal, Pluto bhi hai, chalo Pluto we are not considering, but we have got so many planets, and Chandra is also in fixed Rashi. So here we have got a personality which is perseverant, which is slow, decision taking may be अर्धकाल सर्प चंद्र भार है ना, लेकिन ओके, अर्धकाल सर्प भी है इसको, बट मून इज आउट। तो सैटर्न आ गया फर्स्ट में, तो आर यू इंक्लिन, ऐसे कुछ साइंटिफिक माइंडसेट है क्या तुम्हारा कुछ? यस सर, काफी रिसर्चर हूँ। हर चीज को बहुत ही खोजना, हर चीज खोजना, हर चीज डिटेल में जाना। यस सर, कोई जादू नहीं करने रिसेंटली के लिए। मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा हूँ, तो मैं उससे भी समुद्र शास्त्र को और अपने फिजियोग्नोमी को कोरिलेट कर रहा हूँ काफी। तो ये बहुत ही परसिवरेंट, बहुत ही एक चीज में घुस गया तो कीड़ा बोलते हैं हम लोग ना हर एक चीज का। सो यस सर, ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा तुम्हारे केस में। डिसीजंस भी बहुत ऑब्स्टिनेट होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर डिसीजंस एंड नोबडी कैन मूव योर डिसीजंस वेरी इजीली। यस सर। हाँ, तो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर डिसऑर्डर्स तुम्हारे स्ट्रांगली साइकोटिक होंगे। साइकोसिस तो सेस लेके सिफिलिस पे जाएगी डिसऑर्डर्स। Sir, I have tendency of recurrent stomatitis and F3. जब भी घर आता हूँ तो मेरे को तुरंत ही हो जाते हैं, फिर वो जब तक घर रहता हूँ 1 month 2 months अप्रोक्स तब तक रहते हैं। नहीं, वो थोड़ा सा संभालना तो पड़ेगा तुमको, बिकॉज एक मतलब वृश्चिक इतने प्लैनेट्स हो गए, मतलब स्टैग्नेंसी आ जाएगी उधर किधर ना किधर को, और मंगल भी आ गया उधर, सो इट विल मेक यू वेरी कोल्ड ब्लडेड एंड कोल्ड हार्टेड, मतलब लोगों को संभालना चाहिए तुमसे। सर अभी मंगल की महादशा भी चल रही है। मतलब इससे दुश्मन, कोई दुश्मनी लेनी नहीं चाहिए किसी को, संभाल के रहो इससे। तो दिस, बट ऑन द पॉजिटिव साइड ये चीज बहुत हो जाती है कि स्ट्रांगली दैट जो भी चीज करोगे तुम वो खत्म करने तक उसका पीछा नहीं छोड़ोगे, मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट यू विल लीव थिंग्स हाफ वे। जी, हर एक चीज खत्म करने की कोशिश करोगे। बुध भी आ गया, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, शुक्र भी है, दैट इज ऑल्सो, मंगल भी है, वेरी गुड, राहु बुध है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है तुम्हारे केस में। चंद्र 21 और शनि 24। अच्छा, लेकिन लग्न कुंभ तुम्हारे अंश 0 डिग्री पे है तुम्हारा। जी सर। मतलब मकर के भी क्वालिटीज आएंगे और कुंभ के भी क्वालिटीज आएंगे तुम्हारे केस में, यू विल हैव बोथ द क्वालिटीज टुगेदर। तो इधर एक प्रॉब्लम होता है जी सर।
that leads to confusion of mindset. लेकिन because दोनों है, मकर और कुंभ दोनों एक ही चीज है, तो इतना नहीं प्रॉब्लम होगा. बट समटाइम्स ऐसा लगता है ना सर कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और फिर दो ही थॉट में कंफ्यूज हैं कि ये करें या ये करें. तो that is because your ascendant is at एक मूवेबल और फिक्स साइन के बीच में आ गया. अगर ये नहीं रहता था ना, तो देन दिस वुड हैव बीन, तुम्हारी चार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता था. फिर देन यू वुड हैव बीन 101%. जो ऑरम बोल रहे हैं ना, कोई तो somebody was telling about ऑरम, ऑरम टाइप हो सकता था. बट देन मोर देन ऑरम आर आल्सो वेरी सेंसिटिव इन नेचर. This chart would have been more towards a favor of Scorpion मेरे हिसाब से, Androctonus. लेकिन अभी वो चेंज हो गया तुम्हारा, because it is लग्न 0 डिग्री पे है. तो वो that will prevent you from being very harsh or extremely revengeful. वो चीज कम हो जाएगी. But then disease oriented you will have to be careful. ये चीजों में संभालना पड़ेगा तुमको. ब्लड प्रेशर, बिकॉज वृश्चिक हो गया एंड इट इज अ स्टैग्नेंसी टाइप ऑफ डिसऑर्डर. तो इधर तुम थोड़े बच गए, नुकसान भी है प्रॉफिट भी है, बिकॉज योर लग्न इज एट 0 डिग्री. यस. हाँ, नहीं तो फिर देन आइडियली यू शुडंट गेट मैरिड. अगर एग्जैक्टली अगर ये बीच में होता था, if it was not 0 degree, then एक scientific, तो then a person would be very extremely scientific, extremely cold hearted, खाली काम में ही रहेगा. he will be, क्योंकि सब 10th हाउस ही हो गया है इसके केस में. तो उसको जो भी घर पे बैठना ही नहीं चाहिए, तो बाहर ही बैठना चाहिए और काम ही घर पे करते बैठना पसंद ही नहीं. बैठा हूँ भी 1 से लॉकडाउन है, तो इतना प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है. पर डे कुछ ना कुछ काम घर पर ही निकाल लेता हूँ कि समय मेरा कटे. तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे केस में, बिकॉज वर्क, काम ही चाहिए, काम ही चाहिए. तो ये चीज हो जाएगी. लेकिन ये थोड़ा सा बच गए इसमें तुम, बिकॉज तुम्हारे लग्न 0 डिग्री पे है. मतलब शादी कर सकते हो फिर तुम. ठीक है. दिसंबर में सर मेरा वेडिंग है ना, वही. नहीं तो नहीं करते थे तुम. अदरवाइज यू वुडंट, इफ इट वाज नॉट एट 0 डिग्री you wouldn't have got married. मतलब ये फिर एक साइंटिस्ट की कुंडली हो जाती थी कंप्लीटली. हाँ, कि बाबा उसको एक समथिंग लाइक अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट. अगर आप मुझे पूछो कि बिकॉज वृश्चिक है, वृश्चिक मतलब एक, ये भी एक स्फोटिक प्लैनेट हो गया उसका. जो कुंभ है, इट इज ऑल्सो विंडी साइन, और इधर वृश्चिक है तो स्टैग्नेंसी है. तो ये टाइप की कुंडली एक स्फोटिक, हम लोग बोलते हैं, एक प्रवृत्ति, नहीं तो एक somebody who is a scientist specifically nuclear, वो टाइप की कुंडली हो जाती थी फिर ये. yes. So this is related to Rahul's chart. तो ये देखिए मतलब कितना मैटर करता है कि बाबा एक सुपरफिशियली व्हेन वी सी अ चार्ट एंड व्हेन वी डोंट सी डिग्रीज, तो टोटल पर्सनालिटी चेंज हो जाती थी. जब भी हम लोगों ने डिग्रीज देखा कि चलो एसेंडेंट यानी 0 डिग्री पे है, तो दैट मेक्स द पर्सन, क्योंकि फिर चंद्र की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मून की पोजीशन 6th हाउस में चला जाएगा फिर. तो इन तुम्हारे चार्ट में यू विल हैव टू एनालाइज कि मकर लग्न के हिसाब से भी एनालाइज करना पड़ेगा तुमको, और कुंभ लग्न के हिसाब से भी एनालाइज करना पड़ेगा. दोनों हिसाब से तुमको एनालाइज करना पड़ेगा तुम्हारा चार्ट. खाली एक ही चीज से नहीं कैरेक्टरिस्टिक आएंगे तुम्हारे केस में. यस. ठीक है. फिर एक्वेरियस हम लोग कर रहे थे ना. थैंक यू सर. ओके. तो एक्वेरियस इज द 11th एस्ट्रोलॉजिकल साइन हम लोग जो बोलते हैं. तो इस कैरेक्टरिस्टिक इज मेल, फिक्स्ड एंड विंडी इन नेचर. Being a male sign makes a person courageous, perseverant, inquisitive, great physical and mental capacity to take stress.
Being a physical fixed sign makes the person a workaholic, who cannot sit in one place and work for hours, who can sit in one place and can work for hours. They prefer a work environment where there is solitude, peace, and would not like much disturbance and noise. They usually cannot forget things, get hurt easily, and can be quite revengeful. Now, अगर in his case, राहुल्स केस, अगर हम लोग बोलते थे ascendant 15 डिग्री 14 डिग्री पे रहता था, तो ये characteristics would have been very much prominent for him. क्योंकि उधर सर एक बोलूं सर, हाँ सर एक्वेरियस के बाद तो पाइसेस है ना, तो अगर होना है तो अगर आगे वाला 11 के बाद 12 है, पाइसेस है, मगर आप एक्वेरियस टोटल एक्वेरियस हो गया, ऐसा कह रहे हैं क्या? 0 डिग्री है ना रे। हाँ तो 30 तक मतलब टोटल एक्वेरियस रहेगा या ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं 0 डिग्री पे है मतलब मकर का हो गया ना, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का, एक्वेरियस स्टार्टिंग हो गया ना इसका। ओके, तुम बोल रही हो पाइसेस स्टार्टिंग होगा तो 29 डिग्री होना चाहिए एक्वेरियस। ओके ओके, हाँ हाँ, अब समझ में आया। Sign should, if sign is getting over, that is 29 degree. Sign is starting means 0 degree ना। देन ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन कभी होगा? ट्रांसफॉर्मेशन अग्नि तत्व और वाटर दूसरा तत्व आएगा, बीच में। हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन इज बिटवीन 4 and 5। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इज बिटवीन 4 and 5, 8 and 9, हाँ, and 12 and 1। ओके, हाँ, जब भी अग्नि तत्व और वाटर एलिमेंट और अग्नि एलिमेंट में, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है जब भी इट इज रिलेटेड टू 4, 8, 12। मतलब ये राशि होंगी, नहीं तो ये लग्न होंगे। जैसे 4 मतलब कैंसर विच इज 29 डिग्री और लियो विच इज 0 डिग्री, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेम वे वृश्चिक 29 डिग्री और सैजिटेरियस 0 डिग्री, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और पाइसेस, पाइसेस 29 डिग्री एंड एरीज 0 डिग्री। ये इसमें जब भी आइदर मून रहेगा और your ascendant is there, that means there is going to be major transformation in your life. okay, between अग्नि तत्व and water element। हाँ, मतलब एक ambition से एकदम संत बन गया ना, ये चीज हो जाती है। और संत से एकदम ambitious हो गया। So complete water and fire are opposite तत्व ना, तत्व exact opposite हो जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है, बाकी तत्वों में यू विल नॉट फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हाँ, तो इस केस में इट्स बीइंग अ मेल राशि, वर्कॉलिक हो जाते हैं। दे यूजुअली कैन नॉट फॉरगेट थिंग्स, गेट हर्ट इजीली, कैन बी वेरी रिवेंजफुल। तो अभी जो पहले का राहुल का चार्ट हम लोगों ने जैसे देखा कि बिकॉज इट इज 0 डिग्री, ये क्वालिटी दिखाई नहीं देखती थी, नहीं तो he would have been extremely revengeful, extremely हम लोग जो बोलते हैं कि sensitive to hurt। बुध राहु कॉम्बिनेशन की वजह से ना सर? बुध राहु नहीं, वृश्चिक आ गए ना, सब प्लैनेट्स वृश्चिक में है ना, 10th हाउस में। कॉम्बिनेशन भी ये होता है ना ज्यादा। हाँ, मतलब कीड़ा जो कहते हैं किसी भी चीज बुध राहु की वजह से प्लानिंग आ जाएगी वो। हाँ हाँ हाँ, हर चीज की बारीकियां। हाँ, हर चीज की बारीकियां, नहीं तो हर चीज में प्लानिंग हो जाएगी। तो ये नाइट्रिक एसिड टाइप, एंड्रोक्टोनस हम लोग जो बोलते हैं ना, स्कॉर्पियन, अगर यही चार्ट सब लोग याद ध्यान में रखो, अगर यही चार्ट अगर 15 डिग्री पे होगा, हाँ, जैसे एसेंडेंट प्रोमिनेंट होगा 10 डिग्री 15 डिग्री पे, जैसे ये ट्रांसफर मतलब 0 डिग्री पे नहीं होगा, सो द ड्रग वुड बी स्कॉर्पियन, the drug would be androctonus for that particular person. So right now what इसको फिर मेरा GCS क्या हो सकता है प्रोबेबल? अभी तुम्हारा GCS में अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि कंफ्यूजन आ गया ना इसमें तुम्हारे केस में। अभी मतलब एक माइल्डर वैरायटी हो गई तुम्हारे केस में। you will not belong to androcotanus or you will not belong to metallic family.
तो तुम्हारे केस में अकॉर्डिंग टू दशा यू विल हैव टू कंसीडर रेमेडी. फिनोटाइपिक आएगा तुम्हारा मोर देन जीनोटाइपिक. बिकॉज तुम्हारा फिनोटाइपिक में अगर सपोज मंगल की दशा चल रही है तुम्हारी, हाँ, तो मंगल 10th हाउस में तुम्हारा, अभी मंगल विल रिप्रेजेंट 10th एज वेल एज 9th हाउस तुम्हारे केस में. यस. बिकॉज अगर हम लोग मकर लगना पड़ेंगे तो 9th हाउस हो गया, 10th, मतलब ये पूरे तुम्हारे करियर के रिलेटेड ही चलता रहेगा. करियर एंड रिलीजन के वजह से वो सी चीज चलती है. अभी तुम्हारे केस में ड्रग ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. मतलब जो भी बॉर्डर लाइन केसेस रहते हैं ना, तो ड्रग ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन अगर वृश्चिक का है सब प्लैनेट, तो तुम मर्क सोच सकते हो, मर्क सॉल. क्योंकि अगर तुमको माउथ अल्सर्स है, एप्टे हैं बार बार, यस सर, रिकरेंट है, तो बचपन में भी काफी प्रॉब्लम रही है अल्सर्स की. हाँ हाँ, तो एक है मर्क सॉल तुम सोच सकते हो. दूसरा कैसे शनि और मून ऑपोजिट्स है तुम्हारे ईच अदर में. हाँ, यस. तो दूसरा ड्रग आता है बोरैक्स. बोरैक्स इज लाइक नेट्रम. यस. तो एक और उधर भी वाटरी साइन में बोरैक्स में प्रीडोमिनेंट होंगे प्लैनेट्स. तो ये तुम ऑसिलेट हो सकते हो बिटवीन बोरैक्स एज वेल एज मर्क, दोनों में केस में. लेकिन मर्क से ज्यादा मेरे हिसाब से बोरैक्स जाएगा तुम्हारे केस में. आर यू सेंसिटिव टू नॉइज? यस सर, आई जस्ट गेट इरिटेट. अगर ओवर नॉइज होता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है एकदम. नहीं, डू यू गेट स्टार्टल्ड बाय नॉइज? चौंक जाते हो क्या आवाज से बहुत जल्दी? यस सर. तो बोरैक्स ले लो तुम. ओके सर. ओके सर. बोरैक्स 200 ट्राई करो, देखो, नहीं तो मर्क में जाएगा. अभी तुम्हारे केस में वो प्रॉब्लम हो सकता है काफी हद तक. यस. क्योंकि 0 डिग्री पे आ गया. जी सर. So these become difficult cases where people have 0 degree ascendant, क्योंकि analysis becomes difficult for them. ठीक है. So being again we come to Aquarius. So they prefer a work environment where there is solitude, peace. Would not like much disturbances and noise. So being a windy sign makes them very intelligent. It is the most intellectual sign. Aquarius is strong syphilis. सबसे syphilitic sign जो बोला जाता है is Aquarius. It is the most intellectual sign. The person can go into minute details of everything. They are perfectionist researchers and can have a command over languages. They are excellent performers. Since the lord of Aquarius is Saturn, it makes them workaholic, perseverant, research-oriented, practical. Will not give importance to emotions and will require an explanation for everything. Aquarius rules over calf muscles. So all type of tumors, specifically brain-related tumors, motor neuron disease, glioblastoma, Alzheimer's, this will all come under Aquarius. So Aquarius people have to be very careful when it comes to diseases, because dominant miasm becomes psychosis or psychosyphilitic. So like what we discussed about Scorpio, even more dangerous than Scorpio is Aquarius. So if Rahul's, like we said, if he is blessed that it is at a 0 degree, otherwise it would have been extreme syphilis. Yes. So Lagna भी syphilitic or 10th house Vrushik में syphilitic would have made him extremely syphilitic in nature. So the practical, fastidious, revengeful, ये सब चीजें हो जाती है उसमें. So drugs कौन से आ जाएंगे? Plumbum, met, aurum, natrum silicata, manganum, aurum, all heavy metals will come under Aquarius. जैसे सलमान खान is also Aquarius. हम लोग मून साइन के हिसाब से अगर सोचेंगे तो he is also quite revengeful. Rekha, she never got married. Ravi Shastri is also quite revengeful, it seems. तो ये एक ध्यान रखो.